مسلک مسلک فرقے فرقوں میں بٹ جانے والے اب میں چاہتا ہوں جو آپ کا وقت دیا تھا کہ بغیر میں اپنے خاندان کے نام آئیے میں آپ کے جانے پہچانے مدینہ مسجد کے امام جناب حافظ و قاری عبداللہ سکھینی صاحب کو آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر کہ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو چھوڑ کر چھوڑو تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چھوڑ کر بولو اور جیو کے کب تلک یوں ڈر کے باطل راستوں سے جیو گے کب تلک یوں ڈر کے باطل راستوں سے اگر تم حق کے بھوکے ہو تو سینہ ٹھوک دو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے ہم اور آپ بچوں کے بیانات کو اور نعتیہ اشعار کو سن رہے تھے۔ یقیناً دل یہ کہہ رہا تھا کہ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، یہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اسٹیج پہ آنا، مائک پہ آنا اور کچھ باتیں کرنا یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ آسان سی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو تو کبھی 10 آدمی کے سامنے کچھ باتیں کر کے دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیج پہ آنا کتنی مشکل کی بات ہے۔ میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسہ جامعہ عربیہ حنیفیہ کے محتمم صاحب کو اور تمام استاذوں کو کہ انہوں نے چند دنوں کے اندر اپنے بچوں سے محنت کروا کے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ دوستو، میں ایک ناچیز، ایک طالب علم، میری کوئی حیثیت نہیں کہ یہاں پر علماء کرام کے سامنے کچھ بات کروں، اور آپ کا مقام جانا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہر گھر میں تقریباً حفاظ اور علماء موجود ہیں، تو اس سرزمین پر ہمیں بات کرنا ایک طریقے سے گویا ایسا ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ اسباب سنا کر جاؤں جس سے ہم تمام سامعین کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ خاموشی بنائے رکھے تو میں کچھ بات عرض کروں گا۔ میرا مزاج ہے کہ ٹھنڈے سے مزاج میں کچھ باتیں کرتا ہوں، یہ بچیوں سے گزارش کروں گا بیٹھ جاؤ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ دوستو، وقت بہت کم ہے، وقت کی قلت ہے، اسی لیے میں مختصر میں کچھ باتیں عرض کر دوں کیونکہ بچوں کا ماحول ہے اور سامعین جو تعداد میں ہونا چاہیے شاید کہ انہیں اپنے بچوں کا شوق اور جذبہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ نہیں تو کم سے کم ہمارا بھتیجا پوتا کوئی نہ کوئی تو اسٹیج پر ضرور آیا ہوگا جس کو دیکھنے کے لیے دادا کا شوق جگنا چاہیے، چچا کا شوق الگ جگنا چاہیے، بھائی کا شوق الگ بننا چاہیے، ماں کی شوق الگ بننی چاہیے، لیکن وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ماحول، وہ شوق، وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کافی پروگرام دیکھا ہے بچوں سے زیادہ تعداد گارجین کا ہوتا ہے تاکہ بچے کا حوصلہ بنے، لیکن یہاں ماحول چند لوگ جمع ہے، پتہ نہیں کس فکر
فکر میں اور سوچ میں ہے، خیر اللہ ان چند لوگوں کو یہ قبول فرما لے، آمین کہہ دیجیے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا کیونکہ بچوں کا تربیت کا معاملہ ہے، اور اسی کے متعلق ایک واقعہ پیش کروں گا تاکہ جو مائیں سن رہی ہیں میری باتیں وہ اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک اور واقعہ جو سامعین تمام بیٹھے ہیں ان لوگوں کے نظر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ سب سے پہلے میں ایک واقعہ ان ماؤں کے نظر کرتا ہوں جو مائیں پہلے اپنے گھروں سے بچوں کو ولی بنا کر مدرسے کے اندر داخل کراتی تھی۔ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور ولی ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی والدہ کا واقعہ یوں ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی، مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کیسے کی، اسی کو میں آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ ان کی ماں کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ معصوم بچہ چلنے کے قابل ہوا تو اس بچے کو سب سے پہلے اس کی ماں نے مدرسے کے اندر داخلہ کروایا۔ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ پہلے اسکول، پھر جب شادی کی عمر میں جاتی ہیں لڑکیاں تو مولوی صاحب کو ٹیوشن کے لیے یا کسی طریقے سے آمادہ کر کے تیار کرتے ہیں کہ کہیں شادی میں رکاوٹ نہ ہو جائے، تو چار چند صورتیں سکھا دیجئے تاکہ ہمارا بیٹی کا جو رشتہ پھنسا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ کلیئر ہو جائے۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیتے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد مومن عورت پر فرض ہے۔ بہرحال وہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کی تربیت کس انداز میں کرتی ہے اسی کو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ ماں اپنے بچے کو پرورش کس انداز میں کرتی ہے، اللہ سے کیسے اپنے بچے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو کیسے سمجھاتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو کیسے بتاتی ہے، اسی کو میں عرض کرنے کے لیے چلا ہوں۔ وہ ماں جب وہ معصوم سا بچہ روزانہ مکتب کی طرف اپنا قدم اٹھاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، میری ماں اپنے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اور اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی ولی بنے گا اور آپ کا بچہ بھی مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنے گا۔ شرط ہے کہ آپ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ والا طرز عمل اپنے زندگی میں لائے۔ اور مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب اپنے بچے کو مکتب بھیجتی ہے تو وضو کے ساتھ بھیجتی ہے۔ جب وہ بچہ مکتب سے تربیت کا انداز ہے اس کو میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ وہ ماں اپنے بچے کو آنے سے پہلے مصلی بچھاتی ہے اور اس کے نیچے روٹی کا حصہ رکھتی ہے، اور جب بچہ مکتب کے اندر داخل اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سیکھ کر آئے ہو، اب تمہارا کام یہی ہے کہ تم اللہ سے اپنا رزق مانگو، وہی پروردگار تمہیں رزق دے گا۔ وہ ماں جب یہ تربیت دیتی ہے، مصلی کے نیچے رزق دے کر اپنے بیٹے کا کنیکشن اور رشتہ اللہ سے ملاتی ہے تو وہ بچہ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے۔ وہ بچہ مصلی پر نماز پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے رزق عطا کر، تو سارے جہان کو کھلانے والا ہے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کی ماں گھر سے کہیں اپنے رشتہ دار کے یہاں چلی گئی، بچے تو صبح مکتب کے اندر داخل ہو گئے، جب وہ واپس آئے تو ماں بھی واپس اپنے رشتہ دار کے یہاں سے اپنے گھر کو دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ماں ادھر دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ آج میری لاج رکھنا، آج میری عزت کا سوال ہے، آج میرے بیٹے کا رشتہ تجھ سے ٹوٹ جائے گا، یا اللہ تو کوئی غیبی نظام پیدا کر دینا، کوئی غیبی سلسلہ وہاں پر شروع کر دینا۔ وہ ماں دعا کرتی ہوئی چل رہی ہے اور بیٹا یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ آج میرے ساتھ ماں
माँ नहीं है, घर पर तन्हा जाऊंगा, या अल्लाह आज मुझे कौन खिलाएगा, या अल्लाह आज तू मेरे साथ वही मदद करना जो मेरे साथ तू मेरे माँ के रहते हुए मदद करता है। वो बच्चा घर आता है और घर के अंदर दाखिल होता है, मुसल्ला बिछाता है और अपने बारगाहे इलाही में दुआ करता है नमाज पढ़कर कि या अल्लाह आज मेरी माँ मेरे घर में मौजूद नहीं है, या अल्लाह आज मैं अपने माँ के गायबाना में तुझसे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिस तरीके से तू मुझे रोज़ाना रिस्क देता है आज भी रिस्क अता कर दे। वो माँ दरवाजे पर दुआ कर रही है, घर में पहुँची है, बच्चे तो यहाँ रिस्क खाकर खाना खाकर मुसल्ले के अंदर से जो रिस्क मिला था नींद में आ गया, सो गया बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। माँ को खबर नहीं है कि खाना मिल चुका है, उसे इल्म नहीं है। माँ उठाती है, बच्चे को नींद से बेदार करती है, ए मासूम, ए मेरे प्यारे लाडले, क्या तूने खाना खाया? बच्चा अचानक उठता है, माँ आज मैंने जो रिस्क खाया है आज तक मैंने ऐसा रिस्क नहीं खाया थी, और हैरान थी और परेशान थी। ए अल्लाह तूने क्या मामला कर दिया? यकीनन आज तूने मेरे बेटे का रिश्ता अपने से मजबूत कर लिया। दोस्तों जानते हो उस रोटी के टुकड़े ने मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जिंदगी भर के लिए काकी का लक़ब दे दिया। हिंदी लफ्ज है काकी, काकी के माने आता है रोटी का टुकड़ा। किसकी तरबियत का, किसकी तरबियत थी? उस्तादों की नहीं, माँ की तरबियत थी जिसने मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को एक वली बना दिया। तो मैं जाना के तमाम पर्दानशी माँ और बहनों से मुखातब हूँ और कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस बच्ची की तालीम का, ये बच्चों की तालीम का जो गोद सिलसिला है दरसगाह का, वो आपकी गोद है। आप अपने बच्चों को दीनी माहौल में, दीनी मुआशरे के अंदर उसकी परवरिश करें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलेगा और बनेगा भी। शर्त है कि आप भी मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की तरह अपने ज़िंदगी को तर्ज़ अमल में लाए। दूसरा वाक़या मैं शॉर्ट कट में आपको सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इन तमाम लोगों के लिए ये वाक़या है जो मदारिस से हटे हुए हैं और अपने बच्चों से दूर है और मसाजिद से दूर है, उन लोगों के लिए एक वाक़या फिट करके जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये वाक़या सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद की ज़िंदगी, हमारा माल कहाँ खर्च होना चाहिए। एक बादशाह था, उसने अपने दौर में एक कानून लागू किया कि हमारे ज़माने में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलेगा। गौर से सुन रहे हैं चाचा, गौर से सुनिएगा, बहुत कीमती वाक़या पेश करके जा रहा हूँ। बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में ये कानून लगा दिया कि कोई भी शख्स हमारी हुकूमत में झूठ नहीं बोलेगा। तमाम लोग सोचने लगे कि आप झूठ बोलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। बादशाह ने अपने वज़रा को, अपने चाहने वालों को गलियों में घुमाया, इलाकों में घुमाया, बस्तियों के अंदर घुमाया कि जाओ और मुशाहिदा करो कि कोई झूठ तो नहीं बोलता है। तमाम लोगों का मुशाहिदा हुआ, मुहासबा हुआ और तमाम लोगों का जब जायज़ा लिया गया तो बादशाह सलामत में एक रोज़ तमाम वज़रा के साथ निकला और कहा कि चलो आज हम भी इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कि लोग हमारी कितनी बात मानते हैं। जब वो बादशाह सलामत एक बूढ़े चचा के पास पहुंचा, एक ज़ईफ़ आदमी के पास पहुंचा, तो वो ज़ईफ़ से पूछता है बादशाह सलामत कि चचा आपकी उम्र कितनी है? गौर से सुनिएगा। बादशाह सलामत ने कहा कि चचा आपकी उम्र कितनी है? वो चचा कहता है मेरी उम्र 20 साल है। कितनी? 20 साल उम्र है। एक बूढ़ा वो कहे 20 साल, तो हम जैसा नौजवान कहाँ से कह मान लेगा कि ये बूढ़ा का उम्र 20 साल होगा। बादशाह ने कहा अपने वजीरों से कि इसकी पहली झूठ कॉपी के अंदर, नोटिस के अंदर दर्ज करो। इसने पहली झूठ बोला है कि 20 साल इसकी उम्र है।
बादशाह सलामत से उसने कहा, बादशाह सलामत लिख लीजिए मेरी उम्र 20 साल है। बादशाह सलामत ने कहा, चचा आपके पास औलाद वगैरह है? अरे बच्चे हैं। तो उसने कहा हाँ है। कहा कितने हैं? कहा एक है। लोगों ने कहा बादशाह सलामत ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, इसके पास 4 औलाद है, ये कह रहा है 1 औलाद है, ये झूठ बोल रहा है। बादशाह सलामत ने कहा कि दूसरी झूठ भी इसकी नोट कर लो और इसको दर्ज करो। तीसरा उसने सवाल किया। मैं जाना कि बाशिंदों को ये तीसरा सवाल तमाम लोगों के दिलों पर छोड़ के जाऊंगा। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने कि बूढ़े चचा आपने 2 झूठ कहा है। एक तो ये कहा है कि तुम्हारी उम्र 20 साल है और दूसरा झूठ तुमने कहा कि तुम्हारे पास 1 औलाद है। हालांकि गांव वाले मोहल्ले वाले कह रहे हैं 4 औलाद है। आपने 2 झूठ बोला है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि आपके पास अशरफियाँ माल कितने मौजूद है? उसने कहा मेरे पास 80,000 दिरहम मौजूद है। मैं तमाम जाना के बाशिंदों को ये पैगाम देता हूँ, ये मैसेज देता हूँ कि आप इस बात को, इस वाक़ये को नोट करके जाइएगा। उसने कहा कि बादशाह सलामत मेरे पास 80,000 दिरहम है। बादशाह सलामत ने उसके 3 झूठ को नोट कर लिया। सुबह दरबार लगी। जब बादशाह सलामत ने उस बूढ़े को बुलाया और बूढ़े चचा से कहा कि अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सजा क्या होगी? बूढ़े ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे सच की सजा क्या होगी। बादशाह सलामत तुम मुझे सोली के ऊपर चढ़ा देना, फांसी के फंदों पर चढ़ा देना, मैं तमाम सजा को कबूल कर लूँगा। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जो मैंने 3 सच कहा है वो सच है, तुम उसे झूठ समझते हो, लेकिन मुझे मोहलत देना, मैं वो तीनों सच को जाहिर कर दूँगा। बादशाह सलामत के दरबार में लोगों का हुजूम है, लोग भीड़ लगा रखे हैं, एक कतार लगी हुई है लोगों का कि आज ये बूढ़ा शख्स फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा, आज ये बूढ़ा शख्स दुनिया छोड़ जाएगा। चलो चलो चचा की झूठ का मुशाहिदा करे और जायजा ले और सुने। मेरे अजीजों सुनो, बूढ़े से जब ने बादशाह ने कहा कि चचा याद है ये फांसी का फंदा, ये दज्जाल आपको दिख रहा है, आपने 3 झूठ कहा है मेरी हुकूमत में, आपको फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ेगा, आपकी सजा यही है। बूढ़ा ने कहा कि हाँ हाँ मेरी सजा यही है, लेकिन ए बादशाह सलामत मैं तीनों झूठ की वजाहत करके और तीनों झूठ को क्लियर करके आपके सामने रख रहा हूँ और मैं ओपन उसका जवाब दे रहा हूँ। ए बादशाह सलामत सुनो, मैंने पहला झूठ ये कहा था कि मेरी उम्र 20 साल है। सुनो, मेरी उम्र तकरीबन 80 साल है, लेकिन मैं 60 साल की जिंदगी को शुमार नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने 60 साल की जिंदगी गुनाहों में गुजारी है और अल्लाह का ऐलान है कि जो शख्स अपनी जिंदगी को मेरे लिए, मेरी रजा के लिए लाएगा वही दिन गिनती में है। मैंने 20 साल अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारी है। ए बादशाह सलामत, मैं सिर्फ अपने 20 साल की जिंदगी को गिनता हूँ। अगर ये झूठ है तो मुझे फांसी के फंदों पर चढ़ा दो, मैं मंजूर है, मुझे कबूल है फांसी का फंदा। बादशाह सलामत हैरत में था कि नहीं नहीं ये झूठ नहीं, ये तो सच है। दूसरा उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं मानता हूँ कि मेरे पास 4 औलाद है, लेकिन मैं 4 औलाद की गिनती नहीं करता। इसलिए नहीं गिनती करता क्योंकि मेरे पास जितने औलाद हैं सब नालायक है सिवाय एक के, और अल्लाह का ऐलान है कि औलाद के ऊपर वालिदैन की बख्शिश होगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह का फरमान है कि एक हाफिज कुरान 7 खानदानों को, ऐसे खानदानों को जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उसे जन्नत में ले जाएगा। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं उस औलाद को नहीं गिनता जिसकी वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। मैं उन औलादों को गिनता हूँ, उन बच्चियों को गिनता हूँ, उन बच्चों को गिनता हूँ जो बच्चे
जाने वाला बना है। बादशाह सलामत अगर ये झूठ है तो मैं ये झूठ की वजह से मैं फांसी के फंदे पर चढ़ना गवारा करता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा नहीं नहीं, ये तो सच है। मैं जाना के बाशिंदों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी दीनी तालीम के माहौल में डालिए ताकि आपका जो जन्नत में जाने का जरिया बने वो आपके बच्चे बने, आपकी बच्चियां बने। तीसरा जो झूठ था बादशाह सलामत की नज़र में वो ये था कि बादशाह सलामत से उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं तकरीबन 80,000 दिरहम को गिनता हूँ। बादशाह सलामत से लोगों ने कहा कि ये बादशाह सलामत ये बूढ़ा फ़कीर है, इसके पास कोई रकम नहीं है, ये झूठ बोलता है, इसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई दौलत नहीं है, ये झूठ बोलता है। वो शख्स कहता है कि नहीं नहीं बादशाह सलामत मैं सच बोलता हूँ, मेरे पास 80,000 दिरहम है। बादशाह सलामत मैं तीसरी झूठ का वजाहत कर देता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा वजाहत करो, मैं जाना की बाशिंदों से कहता हूँ इस बात को भी नोट करके जाना। वो बूढ़ा ने कहा बादशाह सलामत एक मरतबा मस्जिद तामीर हो रही थी, अल्लाह का घर बन रहा था, मैं नालायक, मैं गुनहगार, अल्लाह का नाफरमान, मेरे पास 80,000 दिरहम रखे हुए थे, अल्लाह के घर की तामीर हो रही थी, अल्लाह का घर बनाया जा रहा था। मैंने जब ऐलान सुना तो मैं वो 80,000 दिरहम को उठाया और अल्लाह के घर में डाल दिया। मैं इसलिए गिनता हूँ कि वो दिरहम अल्लाह के राह में चला गया है, वो दिरहम मेरा कबूल हो चुका है। आज मैं भी आपको पैगाम देता हूँ कि आप अपनी उम्र का हिसाब कीजिए कि जो उम्र आप अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारेंगे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुजारेंगे, वही उम्र, वही एज, वही ज़िंदगी आपकी शुमार होगी। अगर आप अपने बच्चों को और बच्चियों के परवरिश अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो वही आपको निजात का जरिया बनेगा। और तीसरा पैगाम, अगर आप अपने माल और दौलत को मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, मसाजिद के अंदर खर्च करेंगे, दीनी दरसगाहों में खर्च करेंगे, दीनी इदारों के अंदर खर्च करेंगे, दीनी स्कूलों के अंदर खर्च करेंगे, वही अब पैसा आपका नेकियों में शुमार होगा, अल्लाह के यहाँ गिनतियों में शुमार होगा। यही 3 पैगाम आप लोगों को देकर जा रहा हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज से आप अपनी उम्र को, आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारेंगे। आप अपनी औलादों को, आप अपनी बच्चियों को जो ज़िंदगी गुजरवाएंगे वो भी अल्लाह की रज़ा वाली और अल्लाह की खुशनुदी वाली। और तीसरी पैगाम जो तमाम लोगों के लिए है जिनके पास औलाद है या नहीं है, तमाम लोगों के लिए है कि आप अपने पैसे का खर्च मदारिस में कीजिए, मकातिब में कीजिए, मसाजिद के अंदर कीजिए, दीनी दरसगाहों में कीजिए, इसलिए कि वही माल गिनती के काबिल है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुख्तसर प्रोग्राम को कबूल फरमा ले और इस नाचीज़ के पैगाम को अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हमें अमल की और तमाम सामीन को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।